I am Dr. Rakesh Uke, MD Medicine, and we will see today हंटा वायरस। ये फीवर के साथ में लो प्लेटलेट करता है, जैसे हमने देखा था स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू वायरस। ये सेम सिम्टम्स कॉज करता है। आज हम देखेंगे कि उनसे हम कैसे इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और ये क्या डेंजर सिम्टम्स हमें कॉज कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। हंटा वायरस इज अ enveloped RNA bunia virus hosted naturally in rodents, moles, shrews, transmitted by rodents, aerosols of virus contaminated rodent urine and feces are main source of transmission. Occupation is the main risk factor, like in animal trappers, forestry workers, farmers, laboratory personals, and military personnel. Two clinical symptoms are important: hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS, mild to severe illness, hantavirus pulmonary syndrome, HPS, or also called as hantavirus cardiopulmonary syndrome, severity 40% mortality rate. सिम्टम्स एंड साइंस, इसके लक्षण कैसे रहते हैं हंटा वायरस के? वेस्कुलर लीकेज इज द हॉलमार्क ऑफ डिसीज। एच एफ आर एस एज माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर इलनेस, hemorrhagic fever with renal syndrome. Incubation period usually 2 to 3 weeks, 5 distinct phases: febrile period, hypotension, oliguria, diuresis, and convalescence phase. Various degree of kidney involvement seen. Thromboembolic phenomenon, a secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis. Pulmonary edema usually occurs in oligouric and diuretic phase. Encephalitis and pituitary involvement seen. Persistent hematuria, proteinuria, or hypertension up to 35 months after infection. Smoking appears to exacerbate the viremia, and bradycardia can also be prominent. Second, HPS, hantavirus pulmonary syndrome, the clinical course: a febrile prodrome, a cardiopulmonary stage, oligouric and diuretic phase. Then convalescence. Incubation period 14 to 17 days, then prodromal phase lasting 3 to 6 days. Myalgia, malaise, sudden onset of fever with chills, abdominal pain along with diarrhea, nausea and headache. Cardiopulmonary phase, acute onset of pulmonary edema, cough, abdominal pain, and above symptoms. In severe cases, significant myocardial depression, acute kidney injury, and myositis. In some HPS survivals, sequelae including neuropsychological impairment seen. इन्वेस्टिगेशन, हंटा वायरस का इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हीमो कॉन्सेंट्रेशन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन हिमेटोक्रिट। इलिवेशन इन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज मार्क्ड रहता है। हिपेटोसेलुलर एंजाइम्स एंड सीरम लैक्टेट, अर्ली thrombocytopenia, leukocytosis as high as 90,000 cells per microliter in HPS in both HFRS and HPS, indirect immunofluorescent assay and enzyme immunoassay for IgM or low avidity IgG virus specific antibodies. Hantavirus IgM usually confirm the disease. Quantitative RT-PCR, a plaque reduction neutralization test, gold standard serological assay. Differential diagnosis: acute febrile syndrome seen in early HPS or HFRS requires differentiation from dengue, scrub typhus, leptospirosis, malaria like, and HPS from other respiratory infection caused by chlamydia, legionella, and mycoplasma, and Coxsackie virus infection in differential diagnosis. Treatment is
Usually supportive and symptomatic cardiorespiratory support with vasopressors may be needed. Paracetamol may be taken for fever and myalgia. Extracorporeal membrane oxygenation may be in severe HPS. IV ribavirin is used in hantavirus HFRS with some success in decreasing severity of renal injury. Effectiveness in HPS is not established. Prevention main mode of transmission is aerosol of virus, contaminated rodent urine and feces. So prevention is eradication of rodents from house and avoidance of exposure. ओके, सो अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं जैसे फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सडन ऑनस ऑफ फीवर हो गया, इकाइमोटिक पैचेस है हाथ में या नोज ब्लीडिंग हो रही है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से। सो हम जैसे कॉमन डिसीजेस हमने पिछले बार भी डिस्कस करे थे, जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, डेंगू फीवर। ओके, सो इसके साथ में ये भी आता है अभी। और भी कौन से डिसीज आते हैं जैसे कि येलो फीवर हो गया है, कोलोराडो टिक फीवर, चिकनगुनिया वायरस, और इसके साथ में अभी हंटा वायरस। सो हंटा वायरस ये रेयर है, बट ये डिफरेंशिएशन इस डिसीज से हम कैसे कर सकते हैं बाकी डिसीज का, इसके लिए आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जैसे पेशेंट हमारे पास आएंगे, फीवर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ठीक है, तो उसके साथ में हमें अलग अलग सिम्टम्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि हिमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम अगर है ये पेशेंट में, तो इसमें फीवर रहेगा, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया, यूरिन का कम लगना और किडनी इन्वॉल्वमेंट इसमें रह सकती है। जैसे एचपीएस है, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ये थोड़ा डेंजर होता है। अगर इस फेज में अगर पेशेंट जाता है तो 40% मोर्टेलिटी भी हो सकती है। इसमें मसल पेन, फीवर विथ चिल्स रह सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया आ सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है इसमें। ओके, और पल्मोनरी इडिमा हो सकता है जो कि जानलेवा होता है, और मायोकार्डियल डिप्रेशन, और उसके बाद में एक्यूट किडनी इंजरी भी इसमें हो सकती है। अच्छा, हंटा वायरस को हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? जैसे ये हमारे पास पेशेंट आता है तो सिंपल है इसका, हम हंटा वायरस आईजीएम एंटीबॉडी हम देख सकते हैं जिससे हमारी डायग्नोसिस हो सकती है। और दूसरा है जैसे क्वांटिटेटिव आरटीपीसीआर हम करवा सकते हैं। बाकी ऐसे रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट में हमें क्या मिलेगा, जैसे डब्ल्यूबीसी काउंट एलिवेट रहेगा और न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस रहेगी, मतलब न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रहेगा वहां पे, और इंक्रीज इन हिमेटोक्रिट पीसीवी बढ़ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इनमें माइल्ड एसजीओटीपीटी एलिवेट रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इसमें एलिवेट रहता है। अच्छा, यूरिन इसमें प्रोटीन यूरिया रहता है लगभग 50% केसेस में। ठीक है, कुछ केसेस में जैसे किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई तो इंक्रीज इन यूरिया और क्रियाटिनिन हमें मिल सकता है। सो ऐसे कुछ हम ये डिसीज में देख सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन वाइज। उसके बाद में हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो जनरली इसकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव रहती है, लेकिन केयरफुल मॉनिटरिंग हमें करना पड़ता है वाइटल साइंस की। ओके, कि जैसे मतलब अगर ये इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया तो कफ, फीवर, ब्रीथलेसनेस भी रह सकता है हमें थोड़ा सा। अगर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है तो ऑक्सीजन कम हो सकता है उस केस में। किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो यूरिन का कम लगना हो सकता है। तो हम केयरफुली मॉनिटर करेंगे सारी चीज, फीवर कैसे है, ये सारी चीज। तो आईवी रेबाविरिन ये कुछ केसेस में हम दे सकते हैं, सिलेक्टेड केसेस में डॉक्टर डिसाइड करने के बाद में हमने। ठीक है, इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इस डिसीज के लिए? हम अगर फीवर रहता है तो हम जनरली पैरासीटामोल दे सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम जैसे ये रोडेंट के एरोसोल्स, जो कंटेमिनेटेड वायरस रहता है उसके एरोसोल्स से ये ट्रांसमिट होता है वहां पे, जैसे यूरिन हो गया, फीसेस हो गया रोडेंट्स के। सो हम इरेडिकेशन ऑफ रोडेंट्स कर सकते हैं फ्रॉम हाउस, और उनका एक्सपोजर हम अवॉइड कर सकते हैं। ये बेस्ट वे रहेगा ये प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सो हंटा वायरस जनरली ये साउथ इंडिया में मिलता है, अपने यहाँ ये रेयर ही है, लेकिन हम ये देख सकते हैं इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस एज अ फीवर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, सो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और बहुत कोई डरने की बात नहीं। काफ़ी पेशेंट ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं कि हमें जीका वायरस तो नहीं है, हंटा वायरस तो नहीं है, हमें ये जो नए नए वायरस अभी मिल रहे हैं, कोविड तो सब लोग आजकल सस्पेक्ट ही कर रहे हैं कि हमें कोविड हो गया होगा। बट काफ़ी डरने की बात नहीं है। आप जैसे भी हमें सिम्टम्स आते हैं क्लिनिक में विजिट करें, या अपने नज़दीक डॉक्टर के पास जाए और उनसे ये डिस्कस करें कि हमें ये सिम्टम्स आए हुए हैं। सो वो डिसाइड करते हैं पर्टिकुलरली उस एरिया में क्या इन्फेक्शंस अभी चल रहे हैं और हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी है। ओके, सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ अगर सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए। ओके, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।